Association of Adult Medicine and Child Care. I heartily welcome all of you for this function, and I'm very happy at the tremendous turnout that we have seen today. And this just proves the relevance of this topic of long distance grandparenting. Long distance grandparenting, I wanted to assess, is it really relevant? So I went on Google yesterday, and there is a facility known as Google Trends. So if you type in Narendra Modi, you would have so many inputs which are already put on Google. So so I said, let's try long distance grandparenting. And I was surprised that there is not a single reference to long distance grandparenting in Google as of now. So that means there hardly anything which is being discussed on the net about long distance grandparenting. Not that there are no efforts done to address this issue. There is an society for long distance grandparenting in the US, and it has a very beautiful website and lot of training material, lot of educational inputs are there. That is one. But unfortunately, on the net Google trend, no mention of long distance grandparenting. So I searched for grandparenting, and I was surprised. Hardly any reference to grandparenting. So then I said, okay, let's talk about at least parenting, see if there is any reference to parenting. And yes, there are references to parenting, but India is 43rd in the list of countries from where parenting is searched on Google. Way above us is Uzbekistan. So that means I think we have chosen a right topic to discuss, deliberate, and we have a very good panel now, pediatricians, child psychologists, who are well versed with this topic of what happens to a child's mind, development, and what possibly could be the role of a grandparent in the child, so that you get some kind of guidelines. The biggest tragedy of life is it comes with no user manual. You buy a car, you get a user manual. You buy a dialysis machine, you get a user manual. You buy a fridge, you get a user manual. But the most important thing in this world, our lives, comes with no user's manual. And if at all that is there, it is 40 years old, 50 years old, when your father or mother lived that life at that phase. So that same model is being transferred to us. The world has changed. We were with the same city or village where our parents lived. They had values which remained persistent for generations to come. Those same values are being transferred as gospel truths to the new generation of 21st century, who no longer live in the same city, who live in a multicultural world, and we expect them to stick to the same value systems. Something to deliberate upon. Is it really relevant? And therefore, it is not surprising that till the age of 5 to 7, a child who is outside this country still has some kind of mooring with this nation and its culture. Once they go to the middle school, then it becomes very difficult for those children to connect with their grandparents or to the my mother came from the old country value system. So some of these issues will be deliberated by our esteemed panel, but I will take 1 or 2 minutes, because if you see the banner, it reads Ashwini Kidney Trust. So why should Ashwini Kidney Trust be involved with child development and grandparenting is a natural question. So I am a nephrologist, and when I started my practice, I realized that our people did not have the wherewithal to duplicate the healthcare delivery for kidney disease, which was taught to me in the textbooks. So I started wondering, is it really implementable that we talk of kidney disease in India, in Nagpur, in the socio-economic status that I'm serving? Would it not be better if diseases were prevented and gross deviations from normal healthy living was implemented? So we started with hepatitis B vaccination. Then we realized that our healthcare workers need to be trained. So we started very aggressively, and we continue to do that about dialysis technicians training programs, so that the less mistakes which are done at the front level are better. It will prevent injury to the patient. So we then started investigating an epidemic of chronic kidney disease which occurs in Yavatmal near Pusat, Mahurgarh, which is of unknown origin, possibly related to environmental toxins which are there.
and ecology is not yet in the forefront of medicine as much as it should be. So we still believe that human health is different from animal health, and animal health is different from plant health, and plant health has nothing to do with ecology or environment. But this is the biggest myth that is getting exploded today. We are living in an interrelated world. So Ashwini Kidney Trust has devoted significant resources, energy to trying to understand that and find the linkage between these. For the last few years, what we have noticed is kidney disease is becoming more and more a problem of the elderly, people above the age of 60. And a man above 70, it's highly unlikely that his kidneys would be normal because they start naturally deteriorating. So I started wondering, what can we do so that we live age comfortably and have minimum damage to our bodies and minds and purses? What is it that we can do easily? So we started working on health rather than disease through the trust in gerontology, and under the banner of we started assembling a group of 10-15 interested people whom we knew, and we started picking up one aspect of life, another aspect of life, like the aspect of security for the elderly. What is it that the police is likely to do for us in Nagpur, and what is it that we should protect ourselves? What actions we should take? What is it that the Nagpur Municipal Corporation has promised and is likely to do if we bring up the right people? So we started calling experts from police department, NMC, and then on a philosophical note, I started wondering whether it is possible that a civilization which is 5,000 years old, how is it possible that it has not talked of health? It is impossible that a civilization which is 5,000 years old has not contemplated on this. So the last function we called Dr. Shankar Khobragade, who has done an MPhil in Buddhist philosophy, and in this hall he delivered a lecture on Buddhist philosophy, perspectives on health from theory to practice. We propose to again continue this with looking at other religions from this country, land, looking at Hinduism, and how does Hinduism look at health? Looking at Islam, how does Islam look at health, and what are its perspectives? So this quest for an inquiry into health, healthy living, and different phases of our life in which the elderly are going to be there is our quest and purpose of this assembly. Ashwini Kidney Trust, or AKKI, that is एसोसिएशन ऑफ एडोलेसेंट एंड चाइल्ड केयर इन इंडिया, इनके सहकार्य से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मैं डॉक्टर जयश्री शिवलकर आप सबका स्वागत करती हूँ। ये एक नेशनल एनजीओ है जिसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर स्वाति भावे है और बहुत नामांकित पीडियाट्रिशियन और एडोलेसेंट एक्सपर्ट रही है। उन्होंने ये जो एनजीओ है, पैन इंडिया एनजीओ है, इसके मेंबर्स है और उसका उद्देश्य यही है कि बालक और किशोरवयीन जो युवा रहते हैं उनके स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज में जागरूकता हो, और इसके लिए हम उनके भी वर्कशॉप्स लेते हैं, स्कूल्स में लेते हैं, टीनेजर्स के लिए लेते हैं, लेकिन साथ में उनके जो केयर टेकर्स है, जैसे उनके अभिभावक है, शिक्षक है, सोसाइटी में जो भी उनके कांटेक्ट में आते हैं, उन सब के लिए हम वर्कशॉप्स लेते हैं और पूरी टीम एकदम कमिटेड है। और आज डॉक्टर आरजी पाटिल यहाँ पर है, वो विदर्भ के इंचार्ज है, और पूरी अक्की की तरफ से भी मैं सर का शुक्रिया करती हूँ कि आज उन्होंने स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि एक यूनिक कॉन्सेप्ट अक्की ने लॉन्च किया था कि बच्चों के विकास में ग्रैंड पेरेंट्स का क्या योगदान है, और हम ऐसे कार्यक्रम करते आए हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू बी हियर। जिंदगी की भागदौड़, कश्मकश, हलचल, उसमें एक अचानक प्यारा सा खूबसूरत मोड़ आता है। लगता है बरसों से हम इसी मोड़ का इंतज़ार कर रहे थे। मन में आता है बस अब मेरा वक्त इनके लिए ही है। हर व्यक्ति इस खुशी को दोनों हाथों से समेटना चाहता है, लेकिन ये क्या, जैसे हाथ से रेत निकल जाती है वैसे कहीं ये खुशियाँ हमसे दूर तो नहीं जा रही। जी हाँ, यही संवेदनशील विषय पर आज का हमारा प्रोग्राम है। दादा दादी, नाना नानी बनने की खुशी है, पर पोता पोती,
हमारे साथ नहीं हैं। भावनाओं से तो हम जुड़े हैं पर स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। बंधन तो बहुत प्यारा है लेकिन दूरियां भी आ रही है। अभिमान है कि हमारे बच्चे अपनी राह पे यशस्वी हो रहे, पर उनकी कमी भी तो लग रही है। नाती पोती के जिंदगी में हमारा अभाव ना हो, बल्कि सही और योग्य प्रभाव डालकर एक सकारात्मक स्वभाव की ओर हमें उनको लेकर चलना है। आने वाली बुद्धिमान पीढ़ी को ज्येष्ठता के विवेक से विद्यमान बनाना है। हमारे अनुभव, ज्ञान, प्यार, विश्वास से नई पीढ़ी को राह दिखानी है। ऐसा ही ये सफ़र आज के दौर की वास्तविकता है। मुश्किल है, परंतु इसमें हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, यही जानने के लिए आज हमारे साथ ये सारे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। और मैं आभारी हूँ अश्विनी किडनी ट्रस्ट का, जिन्होंने आज हम सबको साथ लाया है। सो डॉक्टर चोरगड़े सर, आपका स्वागत है। सर, आप तो सभी के लिए यहाँ पे भीष्म पितामह जैसे हैं। आप पिता, दादा दादी, दादा नाना सभी रूप में आपने आपका कर्तव्य निभाए हैं और आज भी निभा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि समाज के परिवर्तन के दौर में ये अनकन्वेंशनल ग्रैंड पेरेंटिंग एट अ डिस्टेंस के बारे में आपके अनुभव से हमको ज्ञात कीजिए। Today's subject, distant grandparenting. I'm sorry, my voice has failed me today. Grandparenting, I think it is a gift of 21st century. My own grandson, he was born in 2000. That time, it was not very easy to contact on telephone. My grandson was born in UK, but recently internet had arrived, computer had arrived, and my son showed his photograph and I could see it on the computer. So 21st century started with a new technology, but it has started distancing the parents from grandparents and children from their grandparents. So 20th century has come up with a boon and bane both. I have an experience of grandparenting for my two grandson and a granddaughter. As I told you, I saw my grandson first time on a computer screen. And then till he was about 1 year old, when he started speaking Ba, we didn't have any communication. We celebrated his first birthday in Nagpur. That time, I could see him, I could talk him, I could hear from his voice Abba. That was the Abba and Aji both. So it was a pleasant experience. Again, there was a gap of 4 or 5 years when they could not come. And I had written a book in English on child care. So on the cover of it, a photograph of my granddaughter was there. And both grandson and granddaughter, they had come. They had talked few sentences about me and the book. It was a pleasant experience for me. And then this WhatsApp came, and then we could communicate regular basis and talking about their school performance, their friends. So our communication started. And during COVID, those 2 years, they were free. I was also free. We used to play chess in addition to talking to each other. So grandparenting is a recent event. And I think because he didn't get any material, the reason is nobody knows much about it. But I have an occasion as a pediatrician when my patients are away from in different cities and also out of country.
when they have a problem about their grandchildren and children, they consult me on phone and I could give some advice. But one thing I always told people, that advice is to be given when asked for. So somebody said some time back that we should praise the child, we should teach the child, we should punish the child if he does wrong. So grandparents are not meant for punishing, they are meant just for loving. And the punishment part should be left to the parents. So next question is for Dr. Jaya Shivalkar. माननीय महोदया, आप चाइल्ड साइकोलॉजी में पारंगत हो. आपसे सवाल है कि नाना नानी, दादा दादी और आज के छोटे बच्चे और एडोलिसेंट्स में मानसिक और भावनिक विकास की दृष्टि से कैसा योगदान दे सकते, विशेषतः जबकि आपके पोता पोती विदेश में या दूसरे शहर में रहते हैं. जहाँ हम भावनाओं की बात करते हैं, क्योंकि हमारी हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई भावना ज़रूर रहती है. और ग्रैंड पेरेंटिंग तो एक प्रोसेस है, कोई एक एक्शन नहीं है. तो डेफिनेटली इसके पीछे भावनाएं तो जुड़ी रहेंगी ही. और सबसे इम्पोर्टेंट भावना जो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं वो है अटैचमेंट. अटैचमेंट की भावना. अगर अटैचमेंट है तो ही हम आगे जा सकते हैं. और ये काफ़ी ग्रैंड पेरेंट्स ने अनुभव किया होगा कि कभी ना कभी उनके, चाहे वो डिस्टेंस में हो चाहे रियल में हो, कभी कभी उनके मन में आता है सो इट्स बेटर नॉट टू गेट अटैच्ड. ना बच्चे सुन रहे, ना ग्रैंड पेरेंट्स सुन रहे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन सुन रहे हैं. इट्स बेटर कि मैं थोड़ा सा इंडिफरेंट ही रहूँ. और कहीं ना कहीं ग्रैंड पेरेंटिंग के एज में हमारा एक स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो जाता है. तो एक थोड़ा सा उसमें भी बताते हैं कि भाई यू नो डोंट गेट अटैच्ड, डोंट गेट इन्वॉल्व. कुछ हद तक वो सही है, लेकिन अगर हमको कुछ करना भी है ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए तो ये अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट आई टेल इज कि अटैचमेंट विथ बिट ऑफ डिटैचमेंट. डिटैचमेंट इन द सेंस कि उनकी तरफ से कुछ अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमने बहुत ज़्यादा उस पर इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है. क्योंकि हर उम्र का जो व्यक्ति है, चाहे अभी वो बच्चा है, एडोलेसेंट है, या आपके बच्चे जो पेरेंट्स बने हैं, सबके अपने अपने लाइफ के चैलेंजेस है. एवरीवन इज गोइंग थ्रू देयर लाइफ चैलेंजेस. तो हो सकता है कहीं आप कुछ बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे, सामने वाला उसको ना ले, तो उसको एक्सेप्ट करना और वो एक्सेप्ट करने का पेशेंस या टॉलरेंस, ये भावना भी ग्रैंड पेरेंट्स में बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी फॉर अदर्स टू, ये तो चिड़चिड़े हो गए, वही बात रोज़ बताते हैं. अगर ऐसा अप्रोच होता है तो कहीं ना कहीं वो हमारी बात नहीं मानेंगे और हम जो उनसे कहना चाहेंगे वो शायद उन तक नहीं पहुंच पाएगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है. दूसरा ये है कि ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट्स में एक नेचुरल बॉन्ड है. किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. आप कभी भी देखो ग्रैंड चाइल्ड आता है तो दादा दादी हो या नाना नानी हो, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहती है. सालों से हम बोलते आ रहे हैं मामाच्या गावाला जाऊया. सो मामा तो है ही, लेकिन नाना नानी भी हमारे उतने ही प्यारे हैं. तो ये नेचुरल बॉन्ड को हमको मेंटेन करना है. वो है, इट इज़ देयर, उसको संभाल के रखना है. वो भावना को हमको एक, जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छे से ख्याल से उसको रखना है, मेंटेन करना है. अगर हम ये भावना को मेंटेन करते हैं तो ग्रैंड चिल्ड्रन में एक पॉजिटिव इमोशंस आते, प्यार की इमोशन आती है, अफेक्शन की इमोशन आती है, केयर की इमोशन आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट की इमोशन आती है. और अगर ये उनका नहीं हो रहा है, देखिए उनके पेरेंट्स बहुत बिजी है और ये बच्चे अभी टेक्नोलॉजी से पूरे घिरे हुए हैं. इसमें ग्रैंड पेरेंट्स ही है जो ये अफेक्शन दिखा सकते हैं. तो उनके लिए है कि भाई मेरे दादा दादी जो है वो मेरी हर बात मानेंगे, दे विल लिसन टू मी, दे विल अंडरस्टैंड मी. और ये भावना क्रिएट करना, मुझे लगता है ये डिस्टेंस ग्रैंड पेरेंटिंग हो या जैसा भी हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज उनके लिए, जैसा सर ने बोला कि पनिशमेंट नहीं देंगे ग्रैंड पेरेंट्स,
लेकिन गलती की तो पहली बार ग्रैंड पेरेंट्स से हम शेयर ज़रूर करेंगे, ये कॉन्फिडेंस उनमें लाना है। भले ही आप डे टू डे उनको सजेशन दीजिए ना दीजिए, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी है कि उनमें कॉन्फिडेंस आए। गलत हो, मैं दादी से बात कर सकती हूँ या दादाजी से बात कर सकती हूँ, वो मेरी बात मानेंगे। और इसलिए हमारे अंदर का जो क्रिटिक है, हर बात को क्रिटिकल एनालाइज करने वाला जो क्रिटिक है, उस भावना को हमने कम करना है, एक्सेप्टेंस की भावना लानी है। और यही अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली आप चाहे पास में हो चाहे दूर हो, आपका वो बॉन्ड जो है वो बना रहेगा। और यही अफेक्शन की, ट्रस्ट की, सुरक्षितता की जो भावना है, ये वो बच्चे की डेवलपमेंट की एक नींव बनेगी। तो मुझे लगता है ग्रैंड पेरेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप कहीं भी रहे, आप ये कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। सो नेक्स्ट इज़ डॉक्टर स्वाति। जैसा हमने बोला कि मैडम काफ़ी बच्चे और एडोलेसेंट के लिए स्कूल्स में जाके, सोसाइटी में जाके काम करती है। तो मैडम आपसे सवाल है कि कोई अगर अपने पोता पोती से दूर रहे और लगातार जुड़े रहे, तो अपनी जो उनकी जो सामाजिक या सांस्कृतिक कल्चरल धरोहर है, वो बच्चों तक पहुंचाने में और उस क्षेत्र में उनके विकास के लिए कैसे प्रयत्नशील रहे। ध्यान रहे, आप दूर हो तो आप उनको क्या निर्देश देंगे, क्या सलाह देंगे, या किस प्रकार से उनके साथ चर्चा करेंगे। डॉक्टर स्वाति प्लीज। दादा दादी, नाना नानी और पोता पोती का बॉन्डिंग जो मेंटेन है, पर कितना भी बॉन्डिंग मेंटेन हो, अगर हम किसी को आदेश देंगे या सलाह देंगे तो वो थोड़ी सी कम ली जाती है। एक तकरीबन 8-10 साल के बच्चे हम जो बताएंगे वो सुनते हैं, पर अगर हम किसी बात को उनको बोलेंगे नहीं ये करना ही है, तो ज़रूरी नहीं वो सुनेंगे। हाँ, पर अगर कोई बात हमको उनसे करवानी है, तो उस बात के लिए हम उनके साथ कुछ चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे कि ये बात क्यों करनी है, नहीं करनी है, इसके क्या परिणाम होंगे, नहीं होंगे। उनसे भी उनके बारे में कुछ उनका भी मत लेंगे, तो ज़्यादा चांसेस ये है कि वो बच्चे आपकी बात सुनेंगे। तो चर्चा करना किसी भी विषय पे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारी जो अपने जो कल्चरल रूट्स है, वो वहाँ पे विदेश में अगर बच्चे हैं आपके पोता पोती, तो उनको कैसे बताएंगे। कोई एक आधा फेस्टिवल अगर आ रहा है और आप उनसे रेगुलर हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, जैसे भी आप उनसे वार्तालाप करते हैं, तो कोई फेस्टिवल आ रहा है तो वो फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस आप उनके साथ शेयर कीजिए, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी उनको दीजिए, किस तरीके से वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे पोला अपने यहाँ पे बहुत सेलिब्रेट होता है, उधर शायद ना होता हो, पर उनको क्यों वो सेलिब्रेट किया जाता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, उस वक्त कौन से डेलिकेसीज अपने यहाँ पे बनती है, क्यों बनती है, वो किस तरह से बनाने हैं। एक आध बार थोड़े से एडोलेसेंट अगर रहे, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप उनकी रेसिपी भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि आप ट्राई कर सकते हो। डिफरेंट इस तरीके से उनको अपने यहाँ के कल्चर के बारे में पता रहेगा, है ना। और फिर जैसे कुछ परिवार में फंक्शन आ रहे हैं, तो फंक्शंस के वक्त कैसे उनके साथ वो भी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे बड़ों से कुछ सलाह ली जाती है, कैसे सब मिलके घर के फैमिली मेंबर्स मिलके, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स भी लेके सब मिलके कैसे काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कैसे सब अरेंज किया जाता है, सब मिलके कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इनसे उनको अपने फैमिली वैल्यूज़ जो है कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना, उनसे सलाह लेना, उन सब मिलके काम करना, ये सब वैल्यूज़ उनको समझ में आती है। और उनसे जब भी वार्तालाप करते हो तो जस्ट खाना खाया क्या, पढ़ाई किया क्या, इसके अलावा अगर आप उनके फ्रेंड्स के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, वो कैसे हैं, कभी किसी को तुम्हारे क्लास में क्या कुछ हुआ क्या, कोई दूसरे बच्चे को बुली करता है क्या, आपको कोई परेशानी है क्या,
गेम्स खेलते हो तो कभी हार होती है, जीत होती है। जीत के लिए सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, पर एक आध बार बच्चा हारता है तो वो भी विनम्रता से कैसे लेना है वो भी उनको सिखाया जा सकता है। तो ये सब बातें चर्चा करके हम उनको डिफरेंट वैल्यूज सिखा सकते हैं। गेम्स में भी टेकिंग टर्न्स, किसी से कुछ छीनना नहीं, किसी को देना, ये सब चीज़ें भी उनको बताई जा सकती है और इस तरीके से उनको उनके सोशल डेवलपमेंट में हेल्प की जा सकती है। डॉक्टर आरजी पाटिल सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि राष्ट्रीय स्तर पे आप एडोलेसेंट के लिए काम कर रहे हैं, उसके राष्ट्रीय संस्था के पदाधिकारी भी आप हैं। अब जैसे बड़े बच्चे होते हैं, हम जानते हैं कि हार्मोन्स में बदलाव होते हैं तो बिहेवियर के प्रॉब्लम आते हैं, और हर घर घर की ये कहानी है कि परिवार में तनाव हो जाता है, वो अब से बात नहीं करते हैं, पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो ऐसे स्थिति में दादा दादी या नाना नानी किस प्रकार से अपना प्रभाव डाल सकते हैं और सभी दृष्टि से उनकी प्रगति हो और वो अच्छे नागरिक बन सके। आपने देखा होगा कि जो बच्चे रहते हैं 5 इयर्स तक, 5 साल तक, उनका कैसा रहता है कि फिजिकल और इमोशनल अटैचमेंट अपने पेरेंट के साथ ज़्यादा रहता है। और मोस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी प्रोग्राम हैं वो अंडर 5 की तरफ ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। लेकिन हमने ऐसा देखा है कि जब बच्चा बड़ा होता है, ट्रांजिशन फेज बोलते हैं उसमें अपन, उनमें क्या होता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनमें, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, सीरोटोनिन। तो इसमें हमने देखा है कि हर घर में जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने मित्र में मिक्स हो जाता है। उसको जो भी फ्रेंड सर्कल रहता है, घर के बाहर से बाहर निकलता है तो वो फ्रेंड सर्कल में रहता है। और आपने ये भी देखा होगा कि ज़्यादातर बच्चे वो फ्रेंड्स का सुनते हैं, पेरेंट्स का सुनते नहीं है। डिस्टेंस जो भी उनके रिलेशन है उनका सुनते हैं, पेरेंट्स का सुनते नहीं है। तो इसमें ऐसा देखा कि इट इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना, इट इज़ ड्यू टू द चेंजेस ऑफ द हार्मोन्स इन द बॉडी, ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। और उसमें क्या रहता है कि इस ट्रांजिशन फेज में एक अपन अपने घर में हार्मोनल डांस बोलते हैं। हार्मोनल डांस यानी कैसा है कि माँ क्या बोलती, पिताजी क्या बोलते, नाना क्या बोलते, दादा क्या बोलते, यानी उसको हम हार्मोनल डांस बोलते हैं। घर में जो डांस होता है, चिडचिडापणा, अरे हे तू नाही केलं, हे का नाही केलं, शाळेत नाही गेला, अभ्यासाला नाही गेला, कुठे गेला, काय झाला, मार्क कमी भेटले, ऑल दीज आर गोइंग इन द फॅमिली. So this is a normal phenomena because there are some hormones which are released during adolescence, during the transition phase. तो सबने पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करना चाहिए कि इसमें उनका कुछ ये नॉर्मल फेज है। तो इस समय अब प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि आइदर द प्रॉब्लम इज इन द स्कूल, सेकंड आइदर द प्रॉब्लम इज इन द फैमिली और इन द सोसाइटी। 3 प्रॉब्लम में से अपने को ढूंढना है कि क्या फैक्टर है। सपोज एग्जाम्पल, कोई स्ट्रेस रहता है, एकेडमिक स्ट्रेस रहता है स्कूल में, या कुछ सोसाइटी का स्ट्रेस रहता है, या फ्रेंड का स्ट्रेस रहता है, या फैमिली का स्ट्रेस रहता है, कोई अल्कोहलिक पेरेंट्स रहते हैं, चिड़चिड़ापना होता है। तो ये स्ट्रेस जो रहता है इसका एक कारण ऐसा है कि ये डिस्कस होता है। तो ये डिस्कशन में क्या हो जाता है, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को सामने डांटते हैं। तो इस समय उसकी भूमिका क्या करना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स को भी उनके सामने डांटना नहीं चाहिए, हो सके तो नॉर्मल रह के, उन्होंने सर ने भी बताया आपको, उनको एडवाइस देना चाहिए। तो मैं इसमें कहता है कि आपको लाइफ स्किल्स, जो हम जीवन कौशल्य बोलते हैं, देर आर 12 लाइफ स्किल्स दैट वी शुड टीच द आवर एडोलेसेंट, लाइक एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हम बच्चों को नहीं पढ़ाते। उदाहरणतः आपण बच्चों को बाहेर भेजते, अरे तुला हे बँकेचं काम येईल का, नाही नाही नको जाऊ, तुला जाता येईल का, तुला करता येईल का, पाहून पहा, साइकिल पाजून पाजून अशी। आप क्या करते हो, उसको एंटिसिपेटरी उनको डर पैदा करते हो बच्चों को, और वो बच्चा क्या हो जाता है, उस फियर फैक्टर में रहता है बच्चा। वो करना, उनको कॉन्फिडेंस दो, ओके तुम मिस्टेक करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। वो मिस्टेक करेगा, लेकिन अब ऐसा करते हैं कि बच्चों को, क्योंकि टुडे वी आर फेसिंग अ न्यूक्लियर फैमिली, वी आर नॉट हैविंग अ जॉइंट फैमिली। तो अटैच एक और 2 ही बच्चा उसमें अटैच। अपन क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ते, कहीं भी सायकल भी देते, अरे तुला येईल का सायकल, पडशील का, लागलं का तुला, अरे व्हाट वी आर डूइंग,
उनको उनको इनकलकेट करना चाहिए नॉलेज, काइंड विल बी जस्ट आई एम विथ यू, आई एम सपोर्टिंग यू। दूसरा भी आपने देखा होगा कि पेपर में पढ़ा होगा एफ्लुएंट पेरेंटिंग, जो अभी नासिक में इंसिडेंस हुआ है, जो कार क्रश हो गई थी, बच्चा अंडर एज का था, आपने पेपर में पढ़ा होगा। लेकिन इस एफ्लुएंट पेरेंटिंग में एक हमने देखा है कि दे आर जस्ट स्पॉन्सरिंग द चाइल्ड्स, वी आर स्पॉन्सरिंग द चाइल्ड्स। जैसे जब आपण मार्केट में तुला हे पाहिजे का घेऊन टाक, हे पाहिजे का घेऊन टाक, हे पाहिजे का घेऊन टाक, वी आर नॉट गिविंग द लव, बिकॉज कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चों के साथ बैठिए आधा एक घंटा, उनके साथ डिनर लिए एक टाइम का, सवेरे आप बिजी रहेंगे तो शाम को एक बार डिनर लो, डिस्कस द थिंग्स, है ना। तो इसमें क्या है, एफ्लुएंट सोसाइटी में उसमें वो लव होता है, तुला वो कर देंगे तो द चिल्ड्रन दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग विद द फ्यूचर। सो व्हाट इज आवर कॉन्सेप्ट, देयर शुड बी अ लव, देयर शुड बी अ बाउंड्रीज, देयर शुड बी अ डिसिप्लिन इन द फैमिली। अपने कभी भी बच्चों को बाउंड्रीज सिखाना चाहिए, वैल्यूज़ भी सिखाना चाहिए और ये भी देना चाहिए। तो ये जो है WHO के जो लाईफ स्किल्स आहे, आपण ज्याला जीवन कौशल्य म्हणतो, ते कुंडली आहे। जर मुलांना आपण त्यांना शिकवलं की अँगर मॅनेजमेंट कसं करायचं, इमोशन्स कुठे हे करायचे, प्रॉब्लेम आला तर प्रॉब्लेमला सॉल्व कसं करायचं, यू ट्राय टू टीच द चिल्ड्रन, दे विल फॉलो। साइली, हमारा सौभाग्य है कि आप ये परिचर्चा में है और आपका एकेडमिक का समय निकाल कर आई है। यू आर एन एडोलसेंट। सो 2 सवाल मैं पूछ रही हूँ, बट यू कैन आंसर एट पर योर दिस थिंग। डू यू थिंक ग्रैंड पेरेंट्स आर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ फॉर योर डेवलपमेंट? एंड व्हेन यू आर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स, योर जनरेशन, तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, नॉट पर्सनली, योर जनरल ओवरऑल एडोलसेंट के, और आप खुद की उनके साथ रिलेशनशिप कैसी है? ओके, सो साइली प्लीज। Thank you for the question, ma'am. A very pleasant evening to all. I, Saili Pakmode, really feel obliged to be a part of today's program and this esteemed panel. Joyce Alston has rightly said, grandparents like heroes are as necessary to a child's growth as vitamins. Like vitamins, grandparents, who are the voices of the past and the doors to the future, provide us with a wisdom from a lifetime of experience, which surely helps in our development. मेरी बात करूँ तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे पास मेरे दादा दादी और नाना नानी दोनों का आशीर्वाद है। मुझे मेरे 4 ग्रैंड पेरेंट्स से अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे मेरे दादू मेरे लिए ज्ञान का भंडार है। वे मेरे साथ न्यूज़, पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। रीड करने की जगह इन डिस्कशन से मुझे इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। मेरी दादी भले ही उतनी एक्टिव ना हो, पर उनके पास हम सब के लिए एनर्जी का एक सीक्रेट पावर हाउस है, जिससे वे सदा हमारा ख्याल रखने के लिए तत्पर रहती हैं। उनसे मैं दूसरों को प्यार करना और दूसरों की सेल्फलेसली केयर करना सीखती हूँ। मुझे मेरे नानू और नानी के साथ भले ही उतना टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वे गाँव में रहते हैं, पर फिर भी उनके कामों ने मुझे हमेशा से इंस्पायर किया है। मेरी नानी का इस एज में भी इतना सोशली एक्टिव रहना और उनके टेक्नोलॉजी को सीखने के प्रयासों ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उसके लिए सिर्फ हिम्मत, लगन और जुनून ज़रूरी है। मेरे नानू के विजन से ही आज मेरी मम्मी और उनकी बहनें एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टेड वुमेन है, जिससे मैं भी एक एजुकेटेड और रिस्पेक्टेड वुमेन बनने के लिए प्रेरित हुई। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की तरह मैं मानती हूँ कि हर ग्रैंड पेरेंट के पास अपने ग्रैंड किड्स को देने के लिए एक तोहफा होता है। ये तोहफा चाहे किसी विषय का ज्ञान हो, कोई रुचि हो या कोई टैलेंट हो, पर एक बात पक्की है कि एक चाइल्ड के अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के प्रोसेस में श्योरली हेल्प करता है, क्योंकि वो तोहफा कोई सामान्य तोहफा नहीं होता, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स से मिला हुआ ज्ञान उनके लाइफ टाइम के एक्सपीरियंसेस और उनके जीवन से मिली हुई सीख का संगम होता है। बस इस तोहफे को प्राप्त करने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताना और उनके जीवन में रुचि दिखाना ज़रूरी है। इसके बावजूद एज एडोलेसेंट्स कभी कभी हमें ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ अनफेवरेबल सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है। हम उन्हें पूरी तरह दोष नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सिर्फ हमारा भला ही चाहते हैं, पर कभी कभी आपकी यह चिंता तानों के रूप में आ जाती है जो हम संभाल नहीं पाते। एज एडोलेसेंट्स
एज एन अडोलेसेंट आज मैं आपके सामने हमारी जनरेशन की आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है वो बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारी और आपकी जनरेशन गैप को समझें, जिसकी वजह से शायद हम आपकी एडवाइस को 100% एक्सेप्ट ना कर पाए, क्योंकि आपके और हमारे चैलेंजेस को फेस करने के तरीके में थोड़ा फ़र्क है। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आप इस युग की मॉडर्न विचारधारा को समझकर हमें समझने का प्रयास करें। कपड़े, दोस्त और मोबाइल यूजेज जैसे विषयों पर आप हमें जज ना करें और खुले विचार रखकर हमें स्वीकार करने का प्रयास करें। साथ ही साथ आप हमें हमारे परिणामों के ऊपर क्रिटिसाइज ना करें। इंस्टेड आप हमें उस हार को भुलाकर एक नई राह दिखाइए। हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर हमें आप पर डिपेंडेंट बनाने की जगह हमें खुद के चैलेंजेस खुद फेस करने के लिए केपेबल बनाइए। मैं मानती हूँ हर रिलेशन परफेक्ट नहीं होता, पर अगर आप और हम इसके लिए मिलकर काम करेंगे तो ज़रूर हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अभी मैंने रिलेशन की बात की है, तो मैं आपको मेरे और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशन बताती हूँ। मैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। इसके पीछे का एक रीज़न है कि इन सब डिफरेंसेस के बावजूद हमारे बीच ओपन कम्युनिकेशन है, और इस ओपन कम्युनिकेशन के पीछे हमारी फैमिली के 2 सबसे बड़े रूल्स का बहुत बड़ा रोल है। रूल नंबर 1 कि जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी तो ओल्ड हो रहे हैं, तो हमारी तरह वो भी इक्वल लव, केयर एंड सपोर्ट डिजर्व करते हैं। रूल नंबर 2, अगर हमारे घर पे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो हमें सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि ग्रैंड पेरेंट्स हमारे घर के एल्डर्स हैं, जिन्हें हमें किसी भी हालत में डिसरिस्पेक्ट या हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि as elders they deserve to be respected and be taken care of. अंत में मैं इतना ही बोलूँगी कि ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल और प्रेशियस पार्ट है, और हमें सदा उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। कि मान ले आप नानी या दादी हो, अभी हो गई हो, और आपका पोता पोती विदेश में है, उन्हें भारतीय भाषा नहीं समझती, और ऐसी स्थिति में आप कैसे वार्तालाप करेंगे ताकि वो आपसे जुड़े और आपसी पारिवारिक संबंध अधिक सुदृढ़ हो? और हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन एक बहुत की फैक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कम्युनिकेशन हमारा नॉर्मल जिससे हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल ही नहीं है, कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी है। हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे जेस्चर्स, हमारा बॉडी लैंग्वेज, और आजकल तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, पिक्चर्स भेजते हैं, इमोजीज भेजते हैं, और हमारी कुछ एक्शंस होती है, हमारा बिहेवियर होता है, रिवॉर्ड होता है, ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। तो दादा दादी जो है वो ये सारे मीन्स का उपयोग करके अपने नाती पोते से जुड़े रह सकते हैं। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी, तो थोड़ा सा मेरा बोलने में फ्लुएंसी कम हो सकती है, बट यहाँ पे एक की फैक्टर कम्युनिकेशन में हमको भूलना नहीं चाहिए कि ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड के कम्युनिकेशन की जो असली कड़ी है वो पेरेंट है। तो जो पेरेंट कोशिश करेंगे कि ये दोनों जन में अच्छा कम्युनिकेशन रहे तो डेफिनेटली रह सकता है। अगर मदर बोल रही वो दादी आ रही है, कट करेगी, वो दादाजी आ रहे हैं, खांसते रहेंगे, तो ग्रैंड चाइल्ड उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है। या मदर अगर बोलेंगे या फादर अगर बोलेंगे कि आप जो बताते ना सुनते नहीं हैं, आप अपनी दुनिया में रहते हैं, ये है वो है, तो ग्रैंड पेरेंट को भी शायद उतना इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा उनसे बात करने का। तो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी कम्युनिकेशन में जो है वो पेरेंट है, और कहीं ना कहीं उनसे भी हमने संपर्क में रहना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के अगर आप पेरेंट्स देखें तो वो इतने स्ट्रेस्ड है, उनके चैलेंजेस इतने अलग हैं, और ख़ासकर अगर अपन विदेश की बात करें तो मेंटली, साइकोलॉजिकली, कल्चरली वो यहाँ जुड़े हुए हैं और रह वो दूसरी जगह पे है, और चाहते हैं कि हमारे बच्चे भारतीय कल्चर या भारतीय मूल्यों से बढ़े, लेकिन वो देने के लिए कोई नहीं है।
तो ये कश्मकश में उनके साथ भी कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। और दूसरा एक जो फैक्टर कम्युनिकेशन में है कि काफ़ी लोगों को आदत रहती है बार बार अपने ज़माने में जाने की। और ख़ासकर जब वो बच्चा एंजॉय कर रहा हो या कुछ डिमांड कर रहा हो या ऐसे कुछ मौके हो, अरे बाप रे तुम्हारे तो ऐसा, हमने तो ना 2 शर्ट पे ही अपनी ज़िंदगी गुजारी। सो यू नो एक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया जो होता है ना, वो सामने वाले को इरिटेट करता है कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर आपके पास 2 शर्ट थे तो वो दौर अलग था, वो माहौल अलग था। लेकिन आपकी भी कोई कहानी है, आपके भी कोई चैलेंजेस के, आपकी भी स्टोरी है, उसको भी आप लाइए, लेकिन एक इंस्पिरेशन के फॉर्म में, नॉट एज एक कंपैरिजन कि देखो भाई हमने तो कैसा किया, हमारे टाइम में तो ऐसे ही था। और एक अपने रिजिडिटी रखना कि नहीं मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं तो ऐसा ही छूँ, मुझे तो गुस्सा आता ही है और हर इसमें मुझे गुस्सा दिखाना ही है, अथॉरिटेटिव बिहेवियर दिखाना है, मुझे प्लेट यहीं चाहिए, गरम रोटी चाहिए। सी यंग जनरेशन इज़ नॉट गोइंग टू रिलेट विद दिस। आपने देखा होगा कि आपका बेटा जो फॉरेन में है वो खुद खाना बनाता है, घर पे कभी उसने किचन में गया भी नहीं होगा, तो वो भी है कि भाई देखो घर पे तो हाथ भी नहीं लगाता था, अपने हाथ से पानी भी नहीं ले रहा था, अब देखो बीवी का के लिए सब कुछ करता है। सो यू नो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये बदलाव बहुत फास्ट आया है, इट इज़ नॉट इवोल्यूशन, इट्स रिवोल्यूशन। और टेक्नोलॉजी के साथ तो ये बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो शाश्वत मूल्य है वो शाश्वत रहने ही वाले हैं। और वो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उसको आगे की जनरेशन में पहुँचे। और हर तरह का प्रयास हमने करना चाहिए। जब तक आप में एनर्जी है, जब तक आप में इच्छा शक्ति है, आप ये प्रयास ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए वेट कर रहे हैं। और कई ऐसे विषय होते हैं जो आपकी बेटी या बेटा जो वहाँ पे ना उनके टीनेजर्स के साथ बात नहीं कर सकते। उनको लगता है मेरी बेटी अभी 18 साल की भी नहीं हुई, मैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में उसके साथ बात करूँ, लेकिन वहाँ वो रियलिटी है। ड्रग्स का इंट्रोडक्शन उनको स्कूल में ही हो रहा है। पोर्नोग्राफी वो कौन से वो तो फॉरेन में क्या, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। इस विषय पे कौन बात करेगा? तो हो सकता है पेरेंट्स को अगर हिचकिचाहट हो रही हो, तो मुझे लगता है दादा दादी नाना नानी ने ये एक बात छेड़ना ज़रूरी है। तो ऐसे कई विषय होंगे कि जो आप अगर उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, तो आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए बहुत सुविधा हो जाएंगी और एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो जाएगा फैमिली में। और मुझे लगता है कि बात तो हम करते ही हैं उनसे, उनकी बात समझते भी है, लेकिन जो वो बात नहीं कर पा रहे हैं वो भी समझना एक कम्युनिकेशन है। और जो ग्रैंड पेरेंट्स ये बात समझ पाएंगे, डेफिनेटली उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनसे कनेक्टेड रहेंगे। तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल कैन डू इट। सिर्फ थोड़ा सा एक अंदर से इंस्पिरेशन लेना है, अपने ईगोज़ जो है, अपना जो एक ये है उसको बाजू में रखना है और खुले दिल से आगे की जनरेशन का वेलकम करना है, क्योंकि उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। बच्चों में अनुशासन लाना, अभी वो दिन गए, विद्या यही घम घम, नहीं कहा छड़ी लगे छम छम, विद्या यही घम घम, वो नहीं रहा है। लेकिन इतना भी नहीं है कि हम अनुशासन भी ना करें। और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, उनमें डिसिप्लिन लाने के लिए ग्रैंड पेरेंट की दृष्टि से उनके बिहेवियर को क्या हमने रिवॉर्ड देना चाहिए, बख्शिश देना चाहिए, सज़ा देना चाहिए, कौन सा प्रभावशाली उपाय है, और वो भी दूर रह के उनको ये करना है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, ये तो सबके लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। बिना डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं हो सकता। पर डिसिप्लिन इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू पनिशमेंट। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना होता है कि डिसिप्लिन में रखना है ना, कुछ तो भी पनिशमेंट देना। बट द मोटिव ऑफ डिसिप्लिन इज़ मेनली एजुकेशन या ट्रेनिंग। हम बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हैं, मतलब क्या, उनको व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग ये उनको समझना चाहिए। ये हम उनको बताते हैं कि सोशली कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, कौन सा नहीं है, ये हमको उनको सिखाना है। तो उसके लिए ये डिसिप्लिन सिखाने के भी 3 तरीके डिस्क्राइब किए हैं। एक है अथॉरिटेटिव, यानी मैंने ये बताया है तो ये तुमको करना ही पड़ेगा उसमें। और यानी सबसे पहले तो इसके 3 घटक होते हैं। एक होता है एजुकेशन,
दूसरा होता है रिवॉर्ड और तीसरा होता है पनिशमेंट। ऐसे ये 3 पार्ट्स होते हैं डिसिप्लिन के। तो उसमें से बच्चे छोटे रहते हैं, यानी तकरीबन 7-8 साल तक मेनली बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है, मतलब उनको एजुकेशन देना है और रिवॉर्ड्स देने हैं। पनिशमेंट इज नॉट देयर। पनिशमेंट कब दी जाती है? जब कोई बच्चा जानबूझ के कुछ तो भी मिसबिहेव करता है, तब उसको पनिशमेंट दी जाती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उतनी समझ नहीं होती, इसलिए उनको कुछ भी सही गलत सिखाना है तो पहले उनको बताना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है। रीज़न बताएंगे तो शायद बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा कि क्यों करना है और याद भी रहेगा। पर बच्चों के उम्र के हिसाब से हमको सिंपल लैंग्वेजेस में उनको बताना है, शॉर्ट एंड सिंपल बताना है। बहुत लंबा चौड़ा आप उनको लेक्चर देंगे ना, उतना उनको याद नहीं रहता है। और काफ़ी बार उनको हम जो बताते हैं वो हाँ हाँ तो बोलते हैं, पर काफ़ी बार उनको समझ में भी नहीं आता। तो हमको उनको पूछना चाहिए कि आप, मैंने जो बताया आपने क्या समझा। कभी कभी वो गलत समझते हैं तो हमको तुरंत उनको करेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमको उनको बताना है। फिर अगर वो राइट टाइप से बिहेव करते हैं तो जब बच्चा 3 साल का होता है तब तक उसकी वोकेबलरी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो कुछ करता है, कोई बिहेवियर उसका अच्छा है तो उसको गुड, नाइस ये शब्दों से अच्छा कर रहा है ऐसे से उसको प्रेरित करेंगे तो वो उसका बिहेवियर बढ़ेगा। और जो गलत कर रहा है उसके लिए नो, डोंट टच, यू विल गेट हर्ट, तुमको कुछ होगा, ऐसा बताएंगे तो वो नहीं करेगा। जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी समझ के हिसाब से उनको क्यों ये चीज़ करनी है और क्यों नहीं करनी है, कौन सी चीज़ गलत है, सोशली लोगों में जा रहे हैं तो कैसे बिहेव करना है, ये सब उनको समझाना है। पनिशमेंट सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। बच्चों ने जब खुद होके जानबूझ के कुछ मिसबिहेव करते हैं तभी उनको पनिशमेंट देनी है, पर पनिशमेंट देना भी आसान नहीं है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, कुछ गलत किया एक रख के दी, कुछ गलत किया कहीं तो भी उनको कमरे में बंद कर दिया, अंधेरे में बंद कर दिया। तो इससे क्या होता, जो उनका मिसबिहेवियर रहता है वो बाजू में रहता, उनको लगता वो बच्चे को पनिशमेंट मिल रही है ना, तो बच्चा हर्ट हो जाता है, उसको कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है और वो उसका दिमाग ऐसा करता है कि मैं तो और भी नहीं सुनूंगा। तो जब भी कोई बच्चा गलती करता है तो हमको बच्चे को और उसके बिहेवियर को अलग करना है। हमको बच्चे को नहीं कुछ पनिशमेंट देना, उसके मिसबिहेवियर के लिए। तो जो मिसबिहेवियर है उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट देना है। ऐसे नहीं कि उसने छोटी सी गलती की उसके लिए बहुत सीवियर उसको पनिशमेंट दी, उससे भी वो बच्चा दुखी हो जाएगा और चांसेस है कि वो आपके रूल्स नहीं फॉलो करेगा। जब वो करता है कुछ गलत, उसके इमीडिएटली बाद उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो भी उसके प्रोपोर्शन में। उसको समझना चाहिए पनिशमेंट देने के पहले और बाद में आपको उनको बताना चाहिए कि किस चीज़ के लिए उनको पनिशमेंट दी गई है। और तो पनिशमेंट देना मतलब क्या, तो जो उसने गलत मिसबिहेव किया है वो कैसे रेक्टिफाई कर सकेगा वो उसको बताना है। जबरदस्ती तू सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, काफ़ी बार बच्चे सॉरी तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं और ज़बरदस्ती किसी से सॉरी बुलवाया भी नहीं जा सकता है। तो उनको बताना है कि क्या गलत किया है और उसके लिए तुम क्या, किस तरीके से उसको सही कर सकते हो। कभी कभी बच्चे दूसरे को हर्ट करते हैं, बुली करते हैं, है ना, ऐसे वक्त उसको अलग रखना। फिर वो जब तक दूसरे बच्चों को सॉरी नहीं करेगा, उनको हर्ट नहीं करेगा, ये प्रॉमिस नहीं करेगा, तब तक उसको अकेला रख दीजिए। तो या फिर उसको जो चीज़ चाहिए, बाकी सब लोग कुछ एंजॉय कर रहे हैं तो वहाँ से उसको चीज़ एंजॉय नहीं करने देना। इस तरीके से प्रोपोर्शनेट ऐसे पनिशमेंट देना ज़रूरी है। और पेरेंट्स प्लस ग्रैंड पेरेंट्स दोनों, दे शुड बी ऑन द सेम बोर्ड।
माँ बाप अलग बोल रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स अलग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्टेंट भी है तो भी बच्चे काफ़ी बार कंप्लेंट करते हैं अपने माता पिता की या किसी लोगों की, तो आपने न्यूट्रल रह के उनको सजेशंस देना है। इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। Saili, we have a question for you. How do you stay connected with your grandparents if they are staying away from you? जैसे तुम आपने बोला कि नाना नानी साथ में नहीं रहते, तो आप क्या करते हैं? भले ही मुझे मेरे नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करने का उतना मौका नहीं मिलता, पर इससे उनका मेरे लिए और मेरा उनके लिए लव और अफेक्शन कम नहीं होता। इसलिए जितना पॉसिबल है उतना हम कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बर्थडे या किसी ओकेजन पर फ़ोन कॉल हो, छोटे बड़े सेलिब्रेशन हो या कुछ दिन की एक शॉर्ट विजिट हो। हम हमेशा कनेक्टेड रहने का प्रयास करते हैं। मैं मानती हूँ कि हम जितना ज़्यादा टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताते हैं उतना ज़्यादा हम उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं जब अपने नाना नानी के यहाँ जाती हूँ तब मेरा फेवरेट पार्ट वो है जब रात को आंगन में खुले आसमान के नीचे मेरे नानू मेरी मम्मी के बचपन के किस्से और उनके खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस मुझे बताते हैं। साथ में मेरी नानी भी मुझे अब उनके ऑर्गेनाइजेशन के काम और प्रोग्राम्स के बारे में बताती है, और उन्हें टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो वो भी मुझसे शेयर करती है। और तो जब से मैंने उन्हें ईमेल करना सिखाया है तब मैंने उन्हें एक पीपीटी बनाने में भी यहाँ से मदद की थी। ऐसे ही अगर हम कनेक्टेड रहेंगे तो हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनेगा। साथ ही साथ एक फैमिली रूल बनाने से भी ज़्यादा कनेक्ट बन सकता है, जैसे हर हफ्ते एक वीडियो कॉल करना, पर इसमें आपका और हमारा दोनों का इक्वल एफर्ट्स होना ज़रूरी है। साथ में फैमिली रूल के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ये मैंने अब तक खुद नहीं ट्राई की, बट हाँ फ्यूचर में करना चाहती हूँ। हैंडमेड लेटर्स भेजना। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम कॉल तो करते हैं, टेक्स्ट भी कर देते हैं, पर जो भावना एक लेटर कन्वे करता है वो कोई कॉल भी नहीं कर पाता, क्योंकि लेटर बहुत प्रेशियस होता है, क्योंकि वो एज अ मेमोरी भी उनके साथ हमेशा रहता है। एंड में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लाइफ का एक बहुत वैल्यूएबल पार्ट है, जिन्हें हमें सदा चेरिश करना चाहिए, क्योंकि किसी ने सही कहा है, चेरिश एवरी मोमेंट विथ योर लव्ड वन, बिकॉज यू नेवर नो when moments will become memories. डॉक्टर पाटिल सर, आपसे एक सवाल है कि हम देखते हैं कि बच्चों को न ट्रैफिक रूल्स का कोई वैल्यू है। अक्सर एक्सीडेंट्स, एडोलेसेंट में एक्सीडेंट इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ डेथ, और बहुत ट्रेजिक होता है वो कि ये बच्चा एक्सीडेंट या दुर्घटना का शिकार होता है। वैसे ही एडिक्शंस होते हैं, बहुत कॉमन है। आजकल तो बच्चे 10वीं के बाद ही घर से बाहर निकल जाते हैं, तो उनका अपने स्वयं के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। और पहले हम टीवी या स्क्रीन को तीसरा पालक बोलते थे, पर अभी मुझे लगता है ये पहला पालक बन गया है कि बच्चे तो ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा मोबाइल से कनेक्टेड है। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो इन्हें रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, या दादा दादी का इनमें क्या रोल है, डॉक्टर पाटिल? एक हमारे ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है, एक सेंटर रहता है दैट टेक्स डिसीजन मेकिंग, क्या गलत है, क्या सही है, क्या रॉन्ग है, और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, हमने क्या प्लानिंग करना चाहिए। जनरली ये सेंटर कब डेवलप होता है? आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के बाद। और इसके पहले लिम्बिक सिस्टम नाम का एक सेंटर रहता है, एमिगडेला वगैरह, वो अपना सेंटर ये बहुत एक्टिव रहता है एडोलेसेंट्स में। बच्चे गलती करते हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है, बच्चों का एग्रेशंस, आपने देखा है कि बच्चे जब गाड़ी चलाते हैं तो बहुत फास्ट चलाते हैं, किसको देखते नहीं है, कहाँ से भी निकालते हैं, लोगों के गाड़ी पर पत्थर फेंकना, न्यूसेंस वैल्यू करना। तो इनका क्या रहता है कि दीज आर ड्यू टू सम लिम्बिक सिस्टम एक्टिविटी। उनका जो डिसीजन मेकिंग रहता है आफ्टर द एज ऑफ 20, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो डेवलप बाद में होता है। उसके पहले ये क्या हो जाता है कि कुछ सेंटर्स रहते हैं ब्रेन में, उनमें एग्रेशंस, बिहेवियरल चेंजेस, लेकिन उनको एप्रिसिएशन और रिवार्ड सिस्टम बहुत एक्टिव है। आपने देखा होगा जो भी बच्चे हैं उनको एप्रिसिएशन कह रहा तो बहुत अच्छा लगता है, रिवार्ड सिस्टम वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये कैसा है कि जब मादक पदार्थ जो रहते हैं बच्चों के,
ये काफ़ी उनको अट्रैक्ट करते हैं और उनके नशा डेवलप हो जाता है, उनमें एक प्रकार का नशा डेवलप होता है। ये जो नशा रहता है एज अ पेरेंट्स हमने चैनलाइज करना चाहिए। अभी हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू खाते। हम बच्चों को बता, अरे ये मत खाना है तो को कैंसर हो जाएगा, ये मत खाना ये कैंसर हो जाएगा। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द कैंसर्स, नॉट द डिजीज। आप उनको सिंपल लैंग्वेज में बता देंगे कि अगर तुम तंबाकू खाते हो या सिगरेट पीते हो, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फ्रेंड है और आपके मुंह में से ऐसे दुर्गंध आती होंगी तो आपको कैसा लगेगा। सेकंड, आप जब टॉक करेंगे या आप कोई डिबेट में काम करेंगे, आप आपका गाना गाएंगे तो आपको लगता है क्या कि ये तंबाकू से आपका कुछ आवाज़ में बदल आएगा कि क्या होगा, वो सुनते हैं। इफ़ द एडोलेसेंट्स हु आर टेकिंग इन द एथलीट्स और जिम्नास्टिक एक्टिविटीज़, आप उनको बताएंगे तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो क्या, क्रिकेट खेलते हो क्या, ये तंबाकू खाने से आपको लगता है कि आपके में कोई दम आना चाहिए या आना चाहिए, तो भी फिर वो सोचते हो। ये सेकंड पार्ट है, कैंसर होना लंग का और कोई चीज़ का, ये उनके बाद में आता है, ये हो जाएगा देख लेंगे बाद में। लेकिन एज अप्रोप्रिएट उनके साथ क्या होता है एट दैट एज, व्हाट विल इफेक्ट। आप एकेडमिक पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, आपको लगता है कि आपके दिमाग में कुछ असर हो जाएगा, आपका थोड़ा सा मेमोरी बढ़ेगी, और ये स्मोकिंग या इस तंबाकू से ये कम हो जाएगा। ये चीज़ें अगर आपको एडोलेसेंट में बताएंगे तो वो मानते हैं। ज़रूर है कि वो कैंसर वगैरह वो भी सोचते हैं, लेकिन नोबडी बॉदर्स अबाउट द कैंसर। सेकंड, हमने देखा है कि मीडिया, आपने देखा होगा मीडिया का बहुत एडिक्शन लोगों को है और रात दिन बच्चे मीडिया में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बच्चों को एज अ ग्रैंड पेरेंट्स मीडिया से उनको उसके डिसएडवांटेजेस क्या है उनको बताना चाहिए। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। इफ़ द मीडिया इज़ अफेक्टिंग हिज एकेडमिक एक्टिविटी, स्कूल एक्टिविटीज़, होमवर्क एंड प्लेग्राउंड, तो इसमें ये समझ जाना कि बच्चे को डिजिटल एडिक्शन हो गया है, तो यू शुड कंसर्न द प्रोफेशनल्स। सेकंड, हमने बच्चों को साइबर सिक्योरिटी सिखाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जब फ्रॉड्स होते हैं, अगला आदमी उसका मिसयूज़ करता है, आप अपना उनको पासवर्ड या जो भी कॉन्फिडेंशियल शेयर करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें मॉर्फ होती है और दे आर टेकिंग द एडवांटेज। और तीसरा, हमने अभी नए जनरेशन में देखे, दे टेक सेल्फीज़। आपने देखा होगा कहीं पर भी जाते सेल्फीज़ लेते, मनगिरी के सामने फेंक, गार्डन में फेंकती, तो सेल्फाइटिस बोलते हैं उसको, एडिक्शन ड्यू टू सेल्फी। और सेल्फासाइट्स, जो सेल्फी लेने के बाद जो दुर्घटना घटती है, आत्मा यानी गिर के नीचे ये जाते हो, दुर्घटना घटती है, हमने देखा है। तो हमने बच्चों को एडवाइस करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे टेकड़ी पे जाएंगे, एक फ़ोटो लेंगे, कभी गाड़ी के बाहर रहेंगे, मेरा फ़ोटो ले लो, गाड़ी के ऊपर रहेंगे, फ़ोटो लो, एक आधे ऊपर बिल्डिंग के ऊपर फ़ोटो रहेंगे, बट दीज आर वेरी डिज़ास्ट्रस थिंग्स। तो हमने एज अ पेरेंट्स उनको बताना चाहिए कि ये चीज़ होने से ये क्या क्या चीज़ें होती है। और चौथा हमने कि बताया कि मैडम ने अभी बताया कि एडोलेसेंट में काफ़ी अपने रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसके लिए अपन एज अ पेरेंट्स थोड़े से जिम्मेदार रहते हैं। आपने देखा होगा कि देयर आर लॉज, 50 सीसी के अंदर गाड़ी रहती है, वो बच्चों को अपन बिलो 16 ईयर्स 50 सीसी की व्हीकल्स यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमने देखा है कि 50 सीसी के ऊपर भी व्हीकल्स यूज़ करते हैं। दे आर नॉट वेयरिंग हेलमेट्स आफ्टर ऑल। आपने देखा होगा कि अपने शरीर में कोई भी ईजा होती है, इंजरी होती है, उसकी रिकवरी जल्दी जल्दी होती है, लेकिन दिमाग पर अगर इंजरी होगी तो बड़ा डिफिकल्ट रहता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइव। तो उनको ये बताना चाहिए कि ये जो है हेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर। सेकंड, आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे कान को मोबाइल यूज़ करते हैं, एक हाथ से ड्राइव करते हैं और एक हाथ से मोबाइल भी देखते हैं, आपने रास्ते पर देखा होगा। और कभी कभी ईयरफोन यूज़ करते हैं गाना सुनने के लिए। एक अभी एक्सीडेंट होगा छत्रपति नगर चौक में, सिस्टर का, वो यूज़ में कर रही थी और बाहर से वो गाड़ी में से उतरी और डैश होके मर गई। तो बच्चों को हमने देखा, इट्स ओके, यू कैन यूज़ योर मोबाइल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाना सुनना चाहिए आपने, लेकिन ये गाड़ी, ये जो अपनी व्हीकल पर है, व्हीकल पर गाड़ी यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकंड, हमने देखा है कि ओवर यानी राइडिंग, ओवर स्पीडिंग, वो भी ओवर स्पीडिंग करते, दे आर नॉट फॉलोइंग द दिस सिग्नल्स। सो ट्रैफिक, जो इम्पोर्टेंस होता है ट्रैफिक सिग्नल्स का, ट्रैफिक अवेयरनेस, ये बच्चों को हमने लगता है कि स्कूल में एक्टिविटीज़ में भी देना चाहिए, एज अ ग्रैंड पेरेंट्स उनको देना चाहिए। और ओवर राइडिंग,
2-2 3-3 लोग अपनी गाड़ी पे बैठते हैं और हॉकिंग जो भी देखते हैं कभी भी हॉर्न बजाना, नॉट फॉलोइंग द सिग्नल। और तीसरा इन्हें हमने देखा है कि मीडिया लिटरेसी, आपने देखा होगा मोबाइल, आपने टीवी में, स्क्रीन में, ये क्या करते हैं, दे रोप अप विद द सेलिब्रिटीज़, राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन और सब ऐसे, और ड्रिंक्स और ये जो फूड्स खाते हैं उनके एडवर्टाइजमेंट है। तो हर स्कूल में मीडिया लिटरेसी, माध्यम साक्षरता आपण ज्याला मराठीत म्हणतो, अवेअरनेस, हम क्या करते हैं, अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादातर कमर्शियल लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एज अ सिटीजन अपने को भी उसकी साक्षरता, मीडिया लिटरेसी, इसमें क्या गलत है, ये चीज़ में, ये अपने सेहत के लिए, अपने हेल्थ के लिए अच्छा है क्या, ये गलत है क्या, ये अपने लिटरेसी अपने को होना चाहिए। इससे क्या बच्चे साक्षरता, माध्यम साक्षरता से जो चीज़ कंज्यूम करना है वो करेंगे और जो कंज्यूम नहीं करना है वो नहीं करेंगे। अनुशासन के लिए मारना कितना उचित है? हमने मार खाई है, अपने बच्चों को भी दी है, तो क्या पोता पोती से ये सलूक सही रहेगा या उसका दूसरा तरीका क्या है? तो मुझे लगता है स्वाति यू कैन आंसर दिस, क्योंकि अनुशासन पे आपने बात की है। मारना ये पहले के ज़माने में बहुत रूटीन था, उसका बुरा भी नहीं लगता था पर आजकल के ज़माने में दैट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइसेबल। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ मारने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, धीरे धीरे और ज़ोर ज़ोर से मारते हैं तो भी बच्चा बोलता हाँ मार और एक मार, मैं वैसा ही करूँगा, ऐसे भी बोलने लगते हैं। तो इसीलिए दैट इज़ नॉट, हमको अनुशासन लगाना है, डिसिप्लिन देना है, मतलब क्या, हमको उनको कुछ सिखाना है, उनको और रंगदार नहीं बनाना है कि हाँ मारो और हम, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या फ़ायदा ही जिस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है वो करने में कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जिस तरीके से बताया ना कि क्या मिसबिहेवियर है, उसका जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करो और उसको सुधारने की कोशिश करो। वे साइली ने बताया हमें कि उनके एक्सपेक्टेशन क्या है, उनके जनरेशन के एक्सपेक्टेशन क्या है। और उस दिन लास्ट संडे हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की माननीय चोरगड़े सर के घर पर। उसमें धनंजय ने एक बहुत बड़ी बात की कि उन्होंने कहा कि कुछ बातें ऐसी हम जैसे बोलते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक ऑनेस्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है और सब जगह ऑनेस्टी होना ही चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन हर सोसाइटी में ये ऑनेस्टी का जो मतलब है वो कुछ अलग अलग होता है। जैसे हमारे भारत में बोलेंगे हम कि ऑनेस्ट होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आजकल जैसे उन्होंने बताया कि इटली में बहुत ही स्ट्रीट स्मार्टनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ का बच्चा अगर 20 रुपए की चीज़ कोई 35 रुपये बेचता है तो उसकी माँ बोलती है वेरी स्मार्ट बॉय, शाबाश, है ना, दैट्स देयर सोसाइटी इज एक्सेप्टिंग दैट। लेकिन दूसरे सोसाइटी में हम जाएंगे तो उसको बोलेंगे 20 रुपए की चीज़ 35 में बेची, मूर्ख कहीं का, ऐसा नहीं करना चाहिए, जा उससे 15 रुपये वापस लेके आ। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंट सोसाइटीज फेसिंग डिफरेंट थिंग्स। अभी हमारे को यहाँ पर डिस्टेंट पेरेंटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस पेरेंटिंग करना है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर है कि जिनके पोता पोती जो है अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, जापान में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अभी मैंने और एक किसी को इनवाइट किया था, मिस्टर संजय गेडाम, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाए। उनके पोता पोती जो है ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो मैं उनके अनुभव भी सुनना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आए नहीं। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ पर जो बच्चा अभी पैदा हुआ है वो वहाँ का सिटीजन हो गया, NRI हो गया है, और अभी वो वहाँ पर बढ़ता है, और हम भारत में रहते हैं। हम हमेशा बोलते कि हमारा कल्चर, हमारा महाभारत, हमारा रामायण, हमारा ये सब कुछ कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उसको बहुत मानते हैं। लेकिन ये जो बच्चा है ये वहाँ पर बढ़ रहा है, और ये 10-12 साल का जब हो जाएगा तो उसको वहाँ पर महाभारत या रामायण नहीं मिल रहा है, वहाँ पर कुछ अलग चीज़ें मिल रही है, उसको बाइबल की चीज़ें मिल रही है, या फिर और कुछ चीज़ें मिल रही है, वहाँ का जो रिलीजन है उसकी चीज़ें मिल रही है। वो जो स्कूल में जा रहा है वहाँ हर रोज प्रभु यीशु क्रिस्त की प्रार्थना हो रही है, वहाँ कोई वंदे मातरम की घोषणा नहीं हो रही। अभी वहाँ पर जो बच्चा बढ़ रहा है उसके आजू बाजू में जो पियर्स है, उनकी जो वहाँ पर प्रेशर है उसके ऊपर बनता है, वो उसी के हिसाब से बिहेव करेगा, उसी के हिसाब से ड्रेसअप करेगा। अभी आप बोलेंगे कि आपको कुर्ता पैजामा पहनना चाहिए बेटा, अभी आप बड़ा हो गए हो, दशहरे का दिन है, बोलेंगे व्हाट इज दशहरा,
we don't celebrate Dashera here. है ना, we celebrate Christmas, we celebrate something else. तो उसका वो कल्चर है, तो हम हमारी चीजें उसके ऊपर थोप रहे क्या? सबसे पहले आपको ये सुनना है, हमारा कल्चर खराब नहीं है. देखिए, देर इज नथिंग रॉन्ग और राइट, इट इज ऑल अ रिलेटिव टर्म. It is all a relative term because every society will have their different opinions, and accordingly that they will decide what is wrong and what is right. So in our society, जो चीजें आपको अच्छी लगती है, जो आपके बचपन में अच्छी थी, वो जरूरी नहीं है कि अभी सायली के उम्र के बच्चों को वो अच्छी ही लगे. इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो ओपिनियन है वो कभी भी बच्चों के ऊपर थोपना नहीं है. नेवर डू दैट. दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एडवाइस नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि नेवर ट्राई टू बिकम पेरेंट ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज यू आर नॉट द पेरेंट, यू आर ग्रैंड पेरेंट. ओके, सो पेरेंट्स हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उनको उनकी खुद की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको उनको करने दो, उसमें इंटरफियर मत करो. और जो पोते हैं आपके, उनके सामने आपका जो बच्चा है, आपका बच्चा मतलब वो बच्चे का पिताजी या माता, उसको कभी भी मत डांटो. ध्यान में रखिए, अगर आप उसके साथ उनके सामने बुरा बर्ताव करेंगे, सो दैट चाइल्ड विल नेवर रिस्पेक्ट यू. अगर आप किसी के माँ को, मदर को बुरा भला कहते हैं, या आपके भी मदर को किसी ने बुरा भला कहते हैं कोई व्यक्ति, तो वो कभी आपको माफ नहीं करेगा. ये बात ध्यान में रखिए. सो नेवर ट्राई टू बिकम पेरेंट. फिर आपको क्या करना है, जैसे अभी तोरगढ़े सर ने, मैंने अभी यहाँ पर सबके सुन रहा था, मैं लिख रहा था कि मुझे को क्या कहना है, क्योंकि मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया क्या बोलना है मुझे, और मुझे बताया गया था कि ये सब लोग बोलेंगे, उसका सार जो है मुझे बताना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने देखा है कि लव करिए. अभी लोग बोलते हैं कि अनकंडीशनल लव. अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी होती है कि अनकंडीशनल लव क्या है. कभी ऐसा रहता नहीं है, बिकॉज एवरी टाइम देर इज अ कंडीशन एंड देन ओनली देर इज एन अनकंडीशनल लव. ओके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी के ऊपर प्यार करता है तो वो चाहता है कि उसके बदले में उसको कुछ मिले. लेकिन मैं आप बता दूं कि आप लोग जो है 65, 70, 75 हो और अभी आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आपने पूरी जिंदगी जी ली है, और आपके पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभव है. आप ये चीजें जो है ये अपने पोता पोती में, अपने समाज में बांटने की कोशिश करो, ना कि थोपने की कोशिश करो. आपको, जैसे वाघमारे मैडम ने बताया कि आपको उनके साथ चर्चा करना है, उनको आदेश नहीं देना है. तो उनको बताना है कि हमारे दृष्टिकोण से क्या अच्छा है, क्या बुरा है. देखो बेटा, ये दो चीजें होती है, दो मार्ग है. अगर आप सिगरेट पीते हो तो आपको ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर आप दारू पीते हो तो ऐसा हो सकता है, और आप अगर मोटरसाइकिल इतने स्पीड से चलाते हो तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है, आपको हेड इंजरी हो सकती है, और आप फिर जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हो. तो आप क्या करना चाहेंगे? आपको अच्छा और बुरा ये आपको सोचना है, आप सिर्फ उनको सजेशन देंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी दूसरी चीज और बहुत बार रहती है कि जब भी मैं ज्येष्ठ लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मैं एडोलिसेंट्स के साथ भी काम कर रहा हूँ, ज्येष्ठ लोगों से भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट फोरम के मैं इंचार्ज हूँ विदर्भ रीजन का. तो उसमें ऐसा बहुत बार ऐसा है कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और निराश रहते हैं. नैराश्यानी ग्रासलेले असतात. ते म्हणतात आता काय करायचं, आमचं सगळं काही झालं, आता मला काही करायचं नाही आहे, मी काहीही कामाचा नाही, असं म्हणतात. मी त्यांना नेहमी म्हणतो की सर, you are not useless. Remember, you are not useless, but you are used less by the society. Okay, so try to see that you will be used to the max. You will be used to the max. Otherwise, at the end or when you die, at that time your entire knowledge will be lost and it will not be used.
सो ट्राई टू गिव द नॉलेज टू पीपल एज फार एज पॉसिबल, जितना आप बांट सके हो. सो बिकम यूज्ड मोर, नॉट यूज्ड लेस, ये मेरा कहना है. दूसरा, कोई भी उम्र नहीं होती नया चीज सीखने की. अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हमें अगर हमारे बच्चों से जुड़ना है, हमारे पोता पोती से जुड़ना है, तो आपको नई जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है. तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ उनको सिखाना नहीं है, तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बोलेंगे अभी देखिए मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ना, बच्चे आते, वो खेड़े पाड़े से आते हैं, विलेजेस से आते हैं. वो बोलते हैं की आता आम्हाला काही जमत नाही, पण त्यांना मी म्हटलं तुम्ही गूगल पे करता ना, थोडे हो करतो. तो सगळी 90% जनता आता भारतातली गूगल पे करते आहे. मग कशी करते आहे तुम्ही, करता ना तुम्ही, तो भाजीवाल्याला तुम्ही 20 रुपये देऊन राहिले, याचा अर्थ तुम्हाला मोबाईल वापरता येतो. पहिले तुम्हाला साधा फोन होता, आता तुम्ही स्मार्टफोन वापरून राहिले. आता आपण आधी जी आहे ना ती बैलबंडीतून जात होतो, आधी आपण फिॲटमध्ये जात होतो, गिअरवाली गाडी होती. आता गिअरच नाही हो गाडीला, आता गिअरलेस आहे. एकदा ड्राईव्ह मोडमध्ये टाकली की चालली गाडी तुमची. सो विदाउट गिअर. सो टेक्नॉलॉजी इज चेंजिंग. सो तुम्ही पण काय करायला पाहिजे, तुम्ही कॉम्प्युटर, तुम्ही सगळ्या काही गोष्टी नवीन शिकायचा प्रयत्न करा. प्रयत्न करायला काहीही आपल्याला नुकसान होणार नाही आहे. प्लस मी तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगू इच्छितो की ग्रँड पॅरेंट्स आरंट ओल्ड, दे हॅव जस्ट बीन हॅव्हिंग फन लॉंगर. ते कधीही म्हातारे होत नाही. तुम्ही तुमचे केस पिकले, तुम्हाला सिल्व्हर लायनिंग आली, पण सिल्व्हर लायनिंग असलेले लोक आहेत ना, ॲक्च्युली दे आर नॉट सिल्व्हर लायनिंग, दे आर ॲक्च्युली गोल्डन पीपल. They are actually golden people because their heart is so soft and they are golden people. And that's why तुम्ही आपल्या मुलांसोबत इतकं चांगलं बर्ताव करू शकता. आता लॉंग डिस्टन्स पॅरेंटिंग, लॉंग डिस्टन्स, आता आम्हाला उखळकर सरांनी सांगितलं लॉंग डिस्टन्स करायचं आहे, प्रत्यक्ष भेटायचंच नाही आहे. मग 4 वर्षांनी भेटायचं तर काय करायचं. राईट डाऊन व्हॉट सायली हॅज टोल्ड, की आता आपण प्रत्येकाला लेटर्स लिहिणार आहेत, पण 3 keys to making letters to grandparents more fun. So try to write a letter. That's an art of writing a letter is lost. It is getting lost. So what you can do, आपण काय करू शकतो की यूज अ ब्राईट कलर्ड डेकोरेटिव्ह एनव्हलप, जे की त्यांना अट्रॅक्ट करेल. साधं काय आपण पांढरा पेपर घेऊन लिहिला, अहो असं नका करू, काही नाही होत, 2 रुपये खर्च करा. एक छान प्रकारचा एनव्हलप आणा जो ब्राईट कलरचा आहे, ब्ल्यू, रेड, येलो, छान कलरचा. यूज फन स्टेशनरी कार्ड्स जे आता उपलब्ध आहे. तुम्ही स्टेशनरीच्या दुकानात जा, इतके कार्ड्स तुम्ही तिथे पाहू शकता आणि कार्ड्स घेऊन या. त्याच्यात थोडंसंच लिहा हो, खूप नका लिहू, कारण की तुम्हाला आदेश द्यायचा नाही, निर्देश द्यायचा नाही. तुम्हाला फक्त त्यांच्यावर प्रेम करायचं आहे, त्यांच्यासोबत खेळायचं आहे, त्यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉल करायचा आहे, व्हिडिओ चॅटिंग करायचं. मग इंस्टाग्राम आहे का, तुमचं अकाउंट आहे का इंस्टाग्रामवर? अरे आम्हाला काय करायचं इंस्टाग्रामचं, अहो करायचं आहे खूप सारं. तुम्ही फेसबुकवर जा, तुम्ही इन्स्टावर जा, तुम्ही व्हॉट्सॲपवर जा आणि तुम्ही टेक्नॉलॉजीची व्हायब्रंटली यूज करा. सेंड सम सरप्राईज गिफ्ट्स टू ग्रँड चिल्ड्रन अँड दीज नीड नॉट बी कॉस्टली ऑलवेज. रिमेंबर, मी सगळ्यांना सांगतो, माझ्याकडे जे लहान मुलांना घेऊन आईवडील येतात ती इतके जिद्दी झाले होते. मी एका खेड्यात प्रॅक्टिस करायचो पहिले, खापरखेडा म्हणून गाव आहे. तर तुम्हाला सांगतो, माझ्या हॉस्पिटलच्या बाजूला आहे ना 2-3 गिफ्ट शॉप्स त्यांनी टाकून दिले. एकाने चहाचं दुकान टाकलं, एकाने गिफ्ट शॉप टाकला. तर तिथे मी त्यांना सांगितलं, इथे 50 रुपयापेक्षा जास्त महागाचं खेळणं विकल्या गेलं नाही पाहिजे. म्हणे का बरं सर? म्हटलं 2000 रुपयाचं खेळणंसुद्धा त्याच कामाचं आहे आणि 50 रुपयाचं खेळणंसुद्धा त्याच कामाचं आहे, 10 रुपयाचं सुद्धा खेळणं त्याच कामाचं आहे. फक्त तुम्ही 50 रुपयामध्ये तुम्ही जे खेळणं देणार आहे, 2000मध्ये तुम्ही कितीतरी खेळणे त्याला देऊ शकता. इतक्या अपॉर्च्युनिटीज तुम्ही क्रिएट करू शकता. कारण की 2000चं खेळणंसुद्धा 5च दिवस चालणार आहे, 50 रुपयाचं पण 5च दिवस चालणार आहे. हे लक्षात ठेवा. तुमच्यापाशी अब्ज रुपये असतील, पण तुम्ही प्रत्येक गोष्टीची किंमत त्या बाळाला समजली पाहिजे, याचं तुम्ही ऑलवेज हे तुम्ही लक्षात ठेवा. आता हे फोटो आहे
हा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहे, हे आजकालचं चित्र आहे, आपण घरोघरी हे पाहतो. आता आमचीही मुलं परदेशात आहेत, आमच्यापाशी राहत नाही, परदेशातून फोन करतात तर रोज फोन येतो, मग आला फोन आला, मग काय, मग कॉम्प्युटर उघड कर आणि मग कॉम्प्युटरवर आपण त्यांच्याशी बोलतो, व्हिडिओ कॉल करतो, अर्धा तास बोलतो. मग त्यांना तुम्ही मध्ये मेसेजेस टाकत जा, साधा मेसेज, आणि त्यांना काय खाल्लं रे, काय पिल्लं रे, याच्या काही बोलू नका, काही नाही करायचं. आणि कोणी पण मुलगा समजा तुमच्या घरी आला तर काय म्हणतात लोक माहिती आहे का तुम्हाला, अरे शाळेत काय शिकवलं तुला सरांनी आज, कशाला विचारायचं, बिचारा 6 तास शाळेमध्ये जाऊन पकून आला आहे, त्याला घरी आल्यानंतर पुन्हा ते शाळेत काय शिकवलं, काय होमवर्क दिला, गेलं खड्ड्यात तिकडे, है ना. तुमच्या घरी काय सीन असला पाहिजे तुम्हाला मी सांगू, प्रत्येकाच्या घरी काय सीन असतो बघा, मी तुम्हाला कॉन्ट्रास्ट एक सांगतो. सीन असा असतो की आई सांगते, बघा तुझं नाव सांगील मी आजोबांना, तुझं नाव सांगील मी बाबांना, थांब त्यांना येऊच दे आता. तर रोज ती आई त्या मुलाच्या मनामध्ये असं सांगत आहे, आणि एक दिवस त्या मुलाला त्या आजोबाचा आणि बाबांचा इतका राग आला की त्यांनी, मी एका ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनमध्ये गेलो होतो एका स्कूलमध्ये ॲज अ जज म्हणून, तर त्यांना आम्ही एक विषय दिला की तुम्ही एक आहे ना छान चित्र काढा, तुम्हाला जे पाहिजे ते चित्र काढा, कुठलंही काढा, तुम्ही बस स्टेशन काढा की रेल्वे स्टेशन काढा, एअरपोर्ट काढा, काही पण काढा. तर एका मुलाने एक चित्र काढलं, हो खूप दुःख झालं मला ते पाहून. त्यांनी काय चित्र काढलं माहिती आहे, त्यांनी 2 असे चित्र काढले, एक आजोबांचं चित्र आणि एक वडिलांचं चित्र, आणि त्यांना त्यांनी हँग केलं होतं. व्हॉट इज दिस. तर म्हणे माझी आई रोज सांगते मला की हे बघ, तू जर आलं ना, असं केलं ना, तर तुझं मी नाव आजी आजोबांना सांगेल, बाबांना सांगेल, सो दे हॅव बिकम विलन्स इन हिज लाईफ. सो डोंट डू दॅट. ऑन द कॉन्ट्ररी, ते काय म्हणतात की आले घरी, अभ्यास कर. पण तुमच्या घरी काय सीन असला पाहिजे माहिती आहे, माझ्या घरी काय सीन होता, म्हणजे मी सांगत नाही पण माझा हा अनुभव आहे. माझ्या घरी असा सीन होता की मी जेव्हा घरी आलो तर माझे मुलं पुस्तकं फेकून द्यायचे आणि म्हणायचे, बाबा आले, आजोबा आले. आता बाबा आणि आजोबा हे खेळण्याचं साधन आहे. हे काय साधन आहे? खेळण्याचं साधन आहे. सो यू बिकम अ पर्सन who are a loving person for them. You can play with them, always available, be available to them, stand with them in all the circumstances, whenever given situation. आता हा ॲक्सिडेंट झाला, पुण्याला आपण पाहिलं, आणि तिथे आजोबांनी काहीतरी काड्या केल्या, त्याच्या आईनी त्याचं ब्लड दिलं. असं नका करू, हो असं नका करू. जिथे जे खरं आहे ते करायचं आहे. कुठे पनिशमेंट करायचं आहे हे मॅडमनी तुम्हाला सांगितलं. आणि 2 गोष्टी असतात चाइल्ड सायकोलॉजीमध्ये, एक त्याला आम्ही म्हणतो पॉझिटिव्ह रिएन्फोर्समेंट आणि दुसरं असते निगेटिव्ह रिएन्फोर्समेंट. तर पॉझिटिव्ह रिएन्फोर्समेंट असं आढळून आलं आहे. आता आम्ही त्या दिवशी एक पुस्तक वाचलं, डॉक्टर अश्विनी मॅडमनी आम्हाला एक पुस्तक दिलं होतं, त्याच्यात त्यांनी सार सांगितलं की त्या म्हणाल्या होत्या की रिवॉर्ड याचा पण काही उपयोग नाही, पनिशमेंट तर नको. पण आमचं जे टेक्स्टबुक होतं तेव्हा त्याच्यात दिलं होतं की जर तुम्ही छोटे रिवॉर्ड्स दिले, रिवॉर्ड्स काही त्यांना बक्षीसच दिलं पाहिजे कोणतं आवश्यक नाही, 2 चांगले शाबासकीचे शब्द जरी वापरले, सो दॅट बिकम्स अ पॉझिटिव्ह रिएन्फोर्समेंट फॉर दॅट पर्सन. आणि त्याची जी बिहेवियर असते ती त्याला पॉझिटिव्ह करण्यामध्ये फार मदत होत असते. आणि हे जे मुलं असतात ना, हे आम्ही म्हणतो बिग इंजिन विदाउट अ ब्रेक. बिग इंजिन विदाउट अ ब्रेक. बिकॉज आत्ता सांगितलं पाटील सरांनी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आहे हा 25 वर्षापर्यंत मॅच्युअर होणार आहे, आणि त्याला सपोर्ट करणारी लिम्बिक सिस्टीम आहे, ॲमिगडेला वगैरे, हे त्याला सपोर्ट करून त्याला डिसिजन मेकिंग करायला भाग लावतात. पण लिम्बिक सिस्टीम पण मॅच्युअर नाही झाली, हो, म्हणून 25 वर्षापर्यंत त्याला डिसिजन मेकिंग बरोबर येत नाही. असं नाही की तो प्रत्येक वेळा डिसिजन घेण्यात चुकतो, पण त्याला डिसिजन घेण्याला आपण मदत करू शकतो बाय पॉझिटिव्ह रिएन्फोर्समेंट लहानपणापासून. आणि एकदम 16 वर्षाचा मुलगा झाल्यानंतर त्याला एकदम तुम्ही लेक्चर द्यायला लागाल का? हो नाही. म्हणून तुम्हाला मी सांगतो, आता जे नवीन, आता शिवलकर मॅडम आजच आजी बनल्या, तर आता काय करायचं, सुरुवातीपासून स्टे कनेक्टेड विथ युअर चाइल्ड. पण तुम्ही जर 16 वर्ष झाल्यानंतर तुम्ही आपल्या त्या ग्रँड चाइल्डशी तुम्ही कनेक्ट व्हायचा प्रयत्न केला आणि त्याला एकदम आदेश दिला, तर तो तुमचा ऐकेल का? हो
इम्पॉसिबल है. So the culture, the family values, what you want to inculcate in the grandchild, you have to be right from the beginning when the child is in the womb of the mother. Right from that, love, love, and love. That is the only thing that you can do in the life of the grandchildren. And ultimately, what is there? There are two things. One is the pleasure, and second is the happiness. So pleasure is a short-lived. Pleasure is a short-lived because that limbic system is there, na? So whenever any person takes a drug like MDH and all that, प्रत्येक दिवशी आपण पेपरमध्ये वाचतो की नागपूर विमानतळावर एवढा काहीतरी पकडलं, गांजा पकडला, असं पकडलं, तसं पकडलं. हा MD किंवा अल्कोहोल किंवा सिगारेट किंवा चॉकलेट सुद्धा फॉर दॅट मॅटर, इट गिव्स अ शॉर्ट टर्म प्लेजर विच शॉर्ट ॲक्टिंग. त्याच्यात आपल्याला हॉर्मोन्स असतात आपल्या ब्रेनमध्ये सिक्रेट होणारे, एक सिरोटोनिन आणि ऑक्सिटोसिन नावाचे असतात, आणि अजून एक असतं डोपॅमिन. तर हे डोपॅमिन इतक्या जास्त प्रमाणात सिक्रेट होतं की ते प्लेजर देतं आपल्याला. आपल्याला ते नको आहे. आपल्याला अल्टिमेटली हॅपीनेस पाहिजे आहे, ज्यांनी सिरोटोनिन नावाचा हॉर्मोन तयार होईल. म्हणून तुम्हाला काय करायचं आहे की आपल्या आयुष्यामध्ये, आपल्या फॅमिलीमध्ये आपल्याला एक सुसूत्रता ठेवायची आहे. तुमच्यामध्ये, तुमच्या मुलामध्ये आणि तुमच्या ग्रँड चिल्ड्रनमध्ये आपण एक सुसूत्रता जर ठेवली तर तुमच्या परिवारामध्ये एक हॅपीनेस येईल अल्टिमेटली, अँड दॅट इज व्हॉट इज द फुलफिलमेंट ऑफ लाईफ. I would first of all begin by thanking Dr. R.G. Patil sir, who is the Nanje's batchmate, and he immediately said yes when we approached him for this program, and very kindly consented for Aki to be a part of this. I would also like to thank Dr. Chorghade sir, at whose house we had a wonderful session, and just like there was a panel discussion here today, we almost had a similar panel discussion one-to-one with him. Thank you sir for that. I would also like to thank Dr. Kamlakar Devghare sir, who has in such a short time given us such wonderful insights, and his learnings and teachings to us will be very much welcome. I'd like to thank Dr. Jayashree Shivalkar, who has so expertly conducted the entire program and made sure that we are on time to watch the next proceedings, which will be the installation and swearing in ceremony of the Prime Minister. I would also like to thank Dr. Swati Wagmare. She has been very clear about what discipline should be. And of course, our star of the evening, Miss Saili Pakmode. And I would also like to thank her family for raising her so well and for being here today in such large numbers. There are many people who work behind the scenes, and without their help, it's not possible to have programs. And I would like to thank Mrs. Chanchal Bhide, Mrs. Pooja Sauji, and my friends from Inner Wheel Club who are also present. I can see many of them in the audience. I would also like to thank Mr. Ninave, who is as usual our very staunch supporter. He has been with us so many years. Mr. Rajiv Bandopadhyay, who has kindly sponsored the snacks. If you have not received your box, please take it while you're on the way out. Thank you, Rajiv. I would like to thank Mr. Ganga Khedkar. He is in charge of home care for the aged, and he provides those services in Nagpur. Mr. Khankoje, who has provided this beautiful hall, and Mr. Anup. There are so many others. Some of you have come to us on a personal invitation. Dr. Ashutosh Paturkar is there, Mr. Bhimanwar is there. Auntie, she is 80 plus, but she has grandchildren all over the world. And when she walked in, I said, you are the best person to talk about this topic. Such an expert. There are so many more. Dr. Urkude sir is there, Dr. Sauji is there. I can take names and I can continue to take about 60-70 names, but I know that the time is short. So I will end here by just a very small definition of what is a grandparent. So the best grandparent is one who is not afraid of big dogs and fears storms, but is scared by a simple word, boo. So that's, I will end here.